हेलो फ्रेंड्स, आपका इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट में क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हैम्पर होता है, what are different theories of climate change, and what are the different conventions and international protocols that has been discussed in a field of a climate change. These all will be discussed by me in this playlist or the subsequent lectures. So let's start. So first question arises, what is climate change? So climate change is a long term change in a weather pattern of any surrounding area या any geographical location is called the climate change. यानी कि किसी भी geographical area में weather parameters में एक long term में, it is not talk about कि what is the weather, outside weather is today or outside weather at any single day. It is the cumulative effect of weather parameters or the environmental catastrophes in any geographical area based on the time scale of huge years like the 30 to 35 years, 100 years, then that is called the climate change. So the definition of climate change is that the climate change means a change of climate which in turn attributed directly or indirectly to human activities that alter to composition of the global atmosphere, which in turn addition to natural climate variability observed over a comparable time period. Which means climate change is the combined effect of natural as well as anthropogenic activities, which in turn increases the global temperature. The in-depth knowledge of various theories are important to understand the basic concept of a climate change, how the climate change happens and how the climate change happens from 250 to 300 million years ago to the today. So the comparable time period or the very long periods like the 100 years, 200 years, 300 years or the 1000 years. So what are the different theories involved in a climate change? Let's look on this. So as I have told you previously, there are various theories of a climate change. So the most useful theory are the continental drift theory, plate tectonic theory, Milankovitch principle of Earth rotation, how the rotations of Earth involved in a climate change. Plate tectonic means the plates which is rotated on molten material inside the earth core or the crust, and that plate tectonics, how the plate tectonics is related to the climate change. The continental drift theory, how the drifting of a continent from the 200 to 250 years ago or the this much high time period hampers the climate change. Then most adaptable theory for the anthropogenic activities like the carbon dioxide theory. So let's look on each of them one by one. So first we will start with the continental drift theory. So how the continental drift theory involved in a climate change? So let's start with the continental drift theory. So continental drift theory, the concept of a continental drift theory is given by the Wegener. So there was a supercontinent that is called the Pangaea, and it was submerged in a sea like called the Panthalassa. Then 200 to 250 million years ago, or that is the period is called the Carboniferous period. So in a Carboniferous period में the rupture of a supercontinent that is called the Pangaea takes place. Then there are various rotations or the forces involved in Earth, so that the ruptured mass of a Pangaea, that is the supercontinent, is goes towards the northern hemisphere or the northern pole, and some parts remains at its place, and some parts then further rupture takes place in a different
टाइम पीरियड, डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस टाइम, या उस टाइम से अभी तक बहुत सारे रप्चर्स हो चुके हैं उसमें, और उससे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं. सो लेट्स लुक ऑन द ऑल दिस थ्योरी. This is very big theory of the geography, but we will use the concept of this theory to understand the climate change, the concept of a climate change. So let's look on that. We will talk about, suppose this is the Earth. Yeah, not goes for the drawing, but goes to the concept. This is Earth. Okay. Initially, there was a big continent or the big landform that is called the Pangaea. Pangaea या supercontinent. Yeah, this Pangaea or a supercontinent is submerged in a water body that is called the supercontinent or super ocean, or called the Panthalassa. ये supercontinent that is called the Pangaea, ये submerged था Panthalassa में. Panthalassa was the super ocean. ठीक है, this is the super ocean. देखिए, अगर किसी वाटर बॉडी में कोई भी पार्टिकल जो सबमर्ज है, देन उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द बुयांसी फोर्स. बाद में क्या हुआ, आफ्टर ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड या पीरियड में क्या हुआ, during the Carboniferous period, this Pangaea got ruptured. Okay, this Pangaea got ruptured and it makes the two landforms. Okay, and this is also submerged in the super ocean. Then the northern part of Pangaea is called the Angara land. And the southern part is called the Gondwana land. कुछ प्लेसेस पे इसको लॉरेशिया भी कहते हैं. प्लेसेस इसको लॉरेशिया भी कहते हैं. ठीक है, सो क्या हुआ कि ये जो पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये 200 और 250 मिलियन ईयर्स अगो, 200 से 250 मिलियन ईयर्स अगो, ये इसका ब्रेकडाउन हुआ, रप्चर हुआ, और रप्चर होने के बाद में दो बिग लैंडफॉर्म्स बने या दो बिग कॉन्टिनेंट्स बने. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द अंगारा लैंड, सेकंड वन इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड. इंडिया इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ गोंडवाना लैंड. सो दिस लैंडफॉर्म, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये धीरे धीरे सदर्न हेमिस्फीयर के इस जोन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ में, पोल्स की तरफ में बढ़ना शुरू हुए ड्यू टू सम फोर्सेस की वजह से. ठीक है, वो फोर्सेस क्या थे, वी विल टॉक अबाउट लेटर. तो था क्या कि मोस्ट ऑफ दिस जोन जो है ये नियरली इक्वेटर के पास में था. एक्चुअली थोड़ा सा सही से नहीं बना, बट यहाँ पे इक्वेटर के पास में था. फिर धीरे धीरे ये जो लैंडमास है ये मूव करता हुआ टुवर्ड्स द पोल चला. फिर ये कुछ टाइम पहले इक्वेटर के पास में फिर आया. ठीक है, और जब इसके ऊपर जो और फोर्सेस लगे, लाइक द डिफरेंट फोर्सेस थे, क्या था कि हमारा डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन से थे, अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ फोर्सेस लगे थे. ठीक है, देन उसके बाद में टाइडल फोर्सेस की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, देयर आर डिफरेंट फोर्सेस. तो उसको ये दूसरी तरफ ले गया. बट था क्या कि जो वेगनर थे, वेगनर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. देन हाउ द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया रप्चर, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का रप्चर किस तरीके से हुआ, ये बताने में वेगनर की थ्योरी अनेबल रही, कि इसको ये वेगनर की थ्योरी नहीं बता पाया.
देन उसके बाद हुआ क्या, जो ये अंगारा लैंड था इसके कुछ बने, जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड से कुछ पार्ट बने, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट द नॉर्थ अमेरिका। और यहां लिखते हैं अंगारा लैंड के जो पार्ट्स हैं दैट इज द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप, देन हमारा एशिया, साउथ अमेरिका के ये आपका ये अंगारा लैंड के पार्ट थे। गोंडवाना लैंड के जो पार्ट्स हैं दीज आर एज फॉलो। गोंडवाना लैंड के जो पार्ट हैं दैट इज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या डेक्कन इंडिया इसको बोल सकते हैं, डेक्कन भारत या डेक्कन इंडिया रहेगा। देन उसके बाद में हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, एंड द अंटार्कटिका। ठीक है, सो हुआ क्या कि जब डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अर्थ के ऊपर जब डिफरेंट फोर्सेस लगे, उन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, जो हमारा इक्वेटर के पास में लैंडफॉर्म था ये धीरे धीरे बढ़ के टुवर्ड्स द पोल चला। अब हम लोग जानते हैं कि जो सन की जो रोशनी पड़ती है या सूरज की जो रेज आती हैं या सन रेज जो बात उसके अर्थ के ऊपर जब पड़ती है तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ती है। लाइक कि इक्विनॉक्स के टाइम पे जो सन रेज हैं दैट फॉल्स डायरेक्टली ऑन इक्वेटर, एंड solstice के टाइम पे there are two solstices, that first one is called the winter solstice and some part is called the summer solstice. So summer solstice और winter solstice के टाइम पर डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लोकेशंस के मुताबिक कुछ टाइम्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दैट इज एंड सम पार्ट इज कॉल्ड द 23.5 डिग्री साउथ दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है सनरेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर, और समटाइम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है। सो बेसिकली द ओवरऑल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ पाया जाता है नियरली इसके इक्वेटर के पास में, बट एक्चुअली द मैक्सिमम टेम्परेचर जो ओवरऑल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ है वो पाया जाता है इक्वेटर के पास में। ठीक है, बट एक्चुअली होता क्या है कि इक्वेटर के पास में मैक्सिमम टेम्परेचर तो होता नहीं, पूरे ईयर में किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस लोकेशन पे, तो उस आइसो लाइन को हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। बट था क्या कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, जब टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवेपोरेशन हाई होगा, देन कंडेंसेशन होगा, देन पूरा वाटर साइकिल जैसे चलेगा। वाटर साइकिल चलने के बाद में रेनफॉल हाई होगा, जब रेनफॉल हाई होगा तो उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हाई होगा, वेजिटेशंस रहेगा, लाइफ फॉर्म्स रहेंगे, सारी चीजें हाई रहेगा नियर द इक्वेटर। दिस जोन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो होता क्या है, ट्रॉपिक्स में इस जगह पे हमारे बिग ट्रीज रहेंगे, ग्रीनरीज रहेगी और बहुत सारे हमारे स्पीशीज इस लोकेशंस पे पाई जाती है। बट होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स द पोल चलते हैं, ध्रुवों की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो ध्रुवों की ओर जब मूव करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लो, रेनफॉल लो, इवेपोरेशंस भी लो रहेगा, देन आपका स्पीशीज रिचनेस कम होगा, स्पीशीज अबंडेंस भी अपने आप में कम हो जाएगा। तो होगा क्या, इसकी वजह से हम लोग समझेंगे कि जिस अंगारा लैंड या जिस गोंडवाना लैंड में जो है कभी वहां पे हाईर टेम्परेचर रहा होगा 200 to 250 मिलियन ईयर्स अगो, उसी लोकेशंस पे आज में जो टुवर्ड्स द पोल चलने पे, लाइक हमारा अंटार्कटिका आ गया, मेडागास्कर आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, इस लोकेशंस पे हमारा टेम्परेचर लो होगा। सो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज। यही क्लाइमेट चेंज का एक बेसिक एग्जांपल है, मेन एग्जांपल है कि लाइक हमारा
जिस लोकेशन पे किसी एक टाइम पीरियड पे आज से काफी पहले या 200 to 50 मिलियन ईयर्स अगो जहाँ पे हायर टेम्परेचर्स पाए जाते थे, स्पेसीज रिचनेस हाई थी, स्पेसीज अबंडेंस हाई थी, उन्हीं लोकेशंस पे आज परमाफ्रॉस्ट हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर इतना हाई है कि वहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स के बारे में हम लोग आगे जब बायोम्स वगैरह पढ़ेंगे देन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अल्पाइन टुंड्रा है या फिर परमानेंटली परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अ climate change. So what are the different forces responsible for the southward movement or the northward movement and the westward movement of these landforms? These are called the tidal forces, forces of earth rotation, ठीक है, or some other forces like the gravitation forces of earth. So इस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझा। व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज क्या है, कौन सी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ अ क्लाइमेट चेंज कौन कौन सी हैं, देन हम लोगों ने उसके बाद भी इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बेसिकली पूरा समझा, ठीक है। इस लेक्चर अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इसमें और आगे भी बहुत सारे कंटेंट्स को ऐड करेंगे। तो डिफरेंट जो इसके आगे थ्योरी है लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी, इन सब थ्योरीज को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन कौन से आपके प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उसको भी इसमें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।